नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत एवं शिक्षाएं मिलेनियल्स एवं जेन जी तक के विषय पर आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन हाइब्रिड हॉल द्वितीयतल KMCLU में किया गया। यह कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री दुर्गेश त्रिपाठी स्पीकर एवं यूथ आइकॉन युवा कार्य मंत्रालय भारत सरकार रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में अपने जीवन संघर्षों की यात्रा साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने जीवन में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने युवाओं को नम्र बने रहने, कभी हार न मानने तथा यह समझने की प्रेरणा दी कि सफलता की दिशा में सहभागिता स्वयं में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। माननीय कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने युवाओं विशेषकर जेन जी को जीवन में उन्नति के लिए उद्देश्य की स्पष्टता, आत्मनुशासन एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर नीरज शुक्ला प्रॉक्टर ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर सारगर्भित व्याख्यान देते हुए आत्मविश्वास, क्षेत्र निर्माण एवं राष्ट्र सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर नलिनी मिश्रा के स्वागत भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया। डॉक्टर RK त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रेरणादायक संदेश दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें कि लगभग 100 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। Creativity and transformative power of youth. National Youth Day is not merely a celebration, but a reminder of our responsibility to channel youthful enthusiasm towards nation building and social progress. It gives me immense pleasure to extend a most respectful and heartfelt welcome to our Honorable Vice Chancellor, Professor Ajay Taneja sir, whose visionary leadership, academic foresight, and constant encouragement continue to inspire us to organize meaningful and impactful programs for the holistic development of our students. Sir, your gracious presence here truly motivates the entire university fraternity. A huge round of applause for our Honorable Vice Chancellor, sir, to give his precious time to this occasion. I extend a warm and sincere welcome to Mr. Durgesh Tripathi, who is declared Youth Icon by the Ministry of Youth Affairs, Government of India. His dedication towards youth empowerment and nation building stands as a living inspiration for young minds. Sir, we are honored by your gracious presence and eagerly look forward to your valuable insights that will surely motivate and guide our students. Again, a huge round of applause for Mr. Durgesh Tripathi ji for coming over here and making this program quite successful. Thank you so much, sir. I further extend a very warm welcome to respected Proctor Sir, Dr. Neeraj Shukla ji here, the convener of this program, Dr. Mamta Shukla ji, Mr. Rajendra Tripathi ji, who's Director, FOET, Dr. Lakshman Singh ji for coming over here, Dr. Rajkumar Singh from Department of History, Dr. Manish ji, Dr. Poonam ji, each and everybody present here, Dr. Jahar Azadi ji, everybody who made this program successful, who will definitely contribute towards the successful making of this program. Thank you all for coming over here, and I would like to add on here that Swami Vivekanand's powerful call that Hirenji already has said in words of Hindi, arise, awake, and stop not till the goal is reached, continues to resonate deeply with the youth of our nation. He reminded us that true education lies in character building, stating education is the manifestation of the perfection already in man. These timeless ideals remain highly relevant in today's rapidly changing world. As we celebrate the significant day, let us also remember his inspiring message: take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. May this thought encourage our youth to pursue excellence with dedication, discipline, and courage. On behalf of the whole organizing team, I extend my heartfelt welcome to all the dignitaries once again present over here, faculty members and dear students. Your presence adds meaning and strength to this celebration of youth. Let us pledge to uphold the ideals of Swami Vivekananda and work collectively towards a strong, progressive and youth-driven India. I wish this program a great success. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all. जोरदार तालियों के बीच हम सभी के प्यारे निदेशक महोदय डॉक्टर RK त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच पे उपस्थित हमारे यूनिवर्सिटी के मुखिया प्रोफेसर
अजय तनेजा जी तथा आज के स्पीकर श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी और हमारे विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर नीरज शुक्ला सर और बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग विभाग की विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर ममता शुक्ला मैम और हमारे विश्वविद्यालय की जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नलिनी मिश्रा जी, आप सब और प्यारे हमारे विद्यार्थीगण एवं शिक्षक, आज हम यहाँ पर इस सभागार में नेशनल यूथ डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 को मनाने के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी, हमारा भाषा विश्वविद्यालय भी माननीय कुलपति जी के कुशल नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद के मूल मंत्र उठो जागो और तब तक मत रुकिए जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, ये मूल मंत्र को लेकर ही अग्रसर हैं। माननीय कुलपति महोदय जी इसी मूल मंत्र का पर्याय है। सर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने नैक की B++ ग्रेडिंग हासिल की है। उसके पश्चात हम NIRF तथा वर्ल्ड QS रैंकिंग में भी जल्दी अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में माननीय कुलपति जी की प्रेरणा पाकर भी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भी नित्य नूतन सोपानों को भी प्राप्त कर रहा है। संकाय ने इस सत्र में सर्वाधिक प्रवेश का रिकॉर्ड भी कायम किया है, जो अब तक की प्रवेश का सबसे हाईएस्ट संख्या रही है। इसके अतिरिक्त हम कुछ मतलब नए सब्जेक्टों में मास्टर डिग्री भी इस बार शुरू कर रहे हैं, जिनमें M.Tech सिविल इंजीनियरिंग और M.Tech बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हम शुरू कर रहे हैं और साथ ही संकाय में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्लेसमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए हम सकारात्मक दिशा में कदम उठा रहे हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। संकाय भी हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हमारे युवाओं का निर्माण कर रहा है। एज ए डायरेक्टर, I can assure you our student will lead in their respective domain and will be an integral part of Develop India Vision 2047. जय हिंद। निदेशक महोदय जी, जैसा कि निदेशक महोदय ने बताया कि हमारे अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के छात्रों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो इसी विषय में हमारे बच्चे भी इतना ही प्रयासरत हैं, वो भी नए नए आयामों को हासिल कर रहे हैं तथा जरूर एक दिन वे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में विश्व को लीड करेंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। इसके पश्चात मैं भाषा विश्वविद्यालय के प्रखर वक्ता, सभी बच्चों के प्यारे हमारे कुलानुशासक महोदय डॉक्टर नीरज शुक्ल जी, जो पूर्णतः विश्वविद्यालय के लिए समर्पित रहते हैं, उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे प्रिय कुलानुशासक महोदय जी। बहुत बहुत आभार धीरेन जी। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक मंडल है उसको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आज का ये कार्यक्रम समयानुकूल तो है ही है, साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आज के मुख्य अतिथि महोदय त्रिपाठी जी, तो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण जो यहाँ पर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आज के इस समृद्ध युवा मंच के लिए। हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में यूथ आइकॉन जहां सुशील त्रिपाठी जी हमारे साथ, दुर्गेश त्रिपाठी जी हैं। हमारे विश्वविद्यालय के यूथ आइकॉन हमारे माननीय कुलपति महोदय हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, विवेकानंद जी युग दार्शनिक थे। उन्होंने कोई भी बात यूं ही नहीं कही और युवाओं को उन्होंने यूं ही टारगेट नहीं किया। युवा कौन? सीधी सी बात जो आपके पास पहुंचती है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना
चलता है, वही है जो बदलाव ला सकती है, वही है जो परिवर्तन कर सकती है। इसमें संघर्ष शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन सामयिक आवश्यकता है, समझने की जरूरत है कि संघर्ष हमको करना किसके विरुद्ध है। कहीं ऐसा ना हो अज्ञानता में हम अपने ही लोगों के विरुद्ध संघर्ष कर बैठे। जो लोग हमें प्रश्रय दे रहे हैं, जो लोग हमारे सुख दुख के साथी हैं, हमें संघर्ष करना है उन कुरीतियों के विरुद्ध, उन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, उन आर्थिक कुरीतियों के विरुद्ध, उन सारी बुराइयों के विरुद्ध जो हमारे देश की, जो हमारे देश को क्षीण करती हैं, हमारे देश की प्रतिभा में धब्बा लगाती है। आज देखने की बात है हमारा युवा किस ओर चल रहा है। जोश मलिहाबादी ने बहुत पहले कहा था, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। ये बदलाव सिर्फ युवा कर सकता है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, विवेकानंद जी युग दार्शनिक थे। उन्होंने युवा शब्द का प्रयोग सिर्फ वय से युवा के लिए नहीं किया। हर वो व्यक्ति जो बुराइयों के विरुद्ध जाना चाहता है, जिसके मन में यह भावना है कि हमें बदलाव लाना है, हमें सोसाइटी को चेंज करना है, हमें असत्य से सत्य की ओर चलना है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, हमें अमरत्व की ओर चलना है मृत्यु से, वो युवा है। उसके लिए वय की सीमा नहीं है, कोई आयु नहीं कि इस सीमा के नीचे का व्यक्ति ही युवा है और इस सीमा के ऊपर का व्यक्ति युवा नहीं है। और सीधी सीधी बात, मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए हमारे कुलपति महोदय को, आज की तारीख में पिछले 6-7 महीने से जब से हम लोग के ऊपर आपका हाथ आया है, तब से आप देख रहे होंगे तमाम सारी चीजों में हम लोग प्रगति पथ पर अग्रसर हैं और आगे भी चलते रहेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। आप लोग चूंकि युवा हैं, आप लोग चूंकि छात्र हैं, इसलिए आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। एक छोटा सा दृष्टांत आता है स्वामी विवेकानंद जी के ही इस तरह से कि जब विवेकानंद जी ने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर ली तो अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ मैंने समस्त दीक्षा ले ली है, अब मुझे समाज में जागरण करना है, इसलिए मुझे घर से मुक्ति दीजिए, मैं घर से जाना चाहता हूँ। देखिए माँ के लिए कितना कठिन क्षण होता है जब उसका पुत्र ये कहे कि मैं गृह त्याग करना चाहता हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा, नरेंद्र का घर का नाम था, माँ ने कहा, नरेंद्र वो देखो वहां टोकरी रखी है, उसमें सब्जी रखी है और एक चाकू रखा हुआ है, वो चाकू जरा मुझे ला करके दे दो। नरेंद्र गए और जैसा एक सामान्य बच्चा कर सकता है, उन्होंने उस चाकू को उठाया, लकड़ी वाला हाथ जो उसका मुट्ठा होता है उसको अपने हाथ में रखा और जो लोहे वाला हिस्सा था वो अपनी माँ की तरफ किया कि माँ ये चाकू लीजिए। माँ ने तुरंत कहा कि नहीं नरेंद्र, मुझे लगता है अभी तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, अभी तुम समाज में जाने के योग्य नहीं हो, कुछ दिन और जाकर के पढ़ाई करो। उनके गुरु वही रामकृष्ण परमहंस जी पुनः गए, बोले माँ ने कहा है कि अभी मैं समाज में जाने योग्य नहीं हुआ हूँ, मुझे पुनः आप कुछ और बताइए। कुछ दिन और उनके पास रहे, फिर वही परीक्षा की घड़ी, पुनः पहुंचे अपनी माँ के पास कि माँ मुझे समाज में जाना है, मुझे धर्म जागरण करना है, मुझे राष्ट्र जागरण करना है, मुझे समाज जागरण करना है। माँ ने पुनः वही कहा कि नरेंद्र देखो वो टोकरी रखी है, वही चाकू रखा है, जरा ला करके दो मुझको। अब की नरेंद्र गए और वहां से चाकू उठाया तो लोहे वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा और लकड़ी वाला हिस्सा उन्होंने अपनी माँ की तरफ किया। तब माँ ने सजल नेत्रों से कहा कि हाँ नरेंद्र, अब मुझे लगता है तुम समाज में जाकर के राष्ट्र जागरण का काम, धर्म जागरण का काम, समाज जागरण का काम कर सकते हो, जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसे युवा होने चाहिए जो समाज की विसंगतियों को पकड़ लें और समाज की सुविधाओं को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने वतन को, अपने जो संगी साथी हैं उनको देने का कार्य करें। यानी कि कठिनाइयां खुद सहन करें और आराम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने वतन को दें। इन सब बातों के साथ में हम लोग अगर उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले सके तो आज के कार्यक्रम की ये सार्थकता है। एक बार पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक गणों को, यहाँ पर आए हुए अतिथियों को और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। है खुद को कष्ट दीजिए लेकिन समाज को सुखी करिए। हमारे कुलानुशासक महोदय भी इसी प्रकार है। 10-12 बजे तक रात में कुलानुशासक महोदय विश्वविद्यालय को सेवा देते हैं। उसके बाद उनका कोई पर्सनल टाइम नहीं है। पूरा का पूरा जो कुलानुशासक महोदय वो विश्वविद्यालय के लिए समर्पित रहते हैं। आप उन्हें 4 बजे फोन करिए, 5 बजे फोन करिए, वो हमेशा तत्पर रहते हैं छात्रों की सहायता करने के लिए। हम जैसे युवा शिक्षकों की सहायता करने के लिए हम भी सबसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलानुशासक महोदय जी। इसके पश्चात अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा जिनको सुनने के लिए हम सब बेताब हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं और जिनको हमारी भारत सरकार के द्वारा भी यूथ आइकन के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। जरूर हम उनसे कुछ ना कुछ अच्छे विचार लेके जाएंगे। उससे पहले हम जरा कुछ बता देना चाहते हैं। आप
एकल अभियान के युवा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एकल अभियान देश के 1,10,000 से अधिक गांव में संचालित है, जिसमें आप एकल विद्यालय के माध्यम से पिछड़े बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। इसी के विषय में आपको गांधी पीस प्राइज भी प्राप्त हुआ है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय की मेधावी छात्र परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा विश्वविद्यालय का सर्वोच्च सम्मान चांसलर गोल्ड मेडल भी सर को प्राप्त हुआ है। वर्तमान वर्ष में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इनको यूथ आइकन के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। आप एनसीसी में सी प्रमाण पत्र धारक एवं बेस्ट कैडेट रहे हैं। भारत सरकार के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तथा निशानेबाजी के क्षेत्र में आपने भारत का प्रतिनिधित्व कर भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में आप पाथ ब्रेकर के रूप में भी उपस्थित रहे हैं। तो आइए हम सब जोरदार तालियों के साथ हमारे मध्य उपस्थित श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं और मैं उन्हें आदर सहित मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पूरी ऊर्जा के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मंच पे बैठे कुलपति महोदय, विनम्र सरल सहज आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय, मैं अभी जब इनको सुन रहा था तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि अब बोलने की आवश्यकता बची है कि नहीं बची है। इसके बाद बचा कुछ वैसे है नहीं। और आप लोगों का इनके प्रति प्रेम कितना है वो इनका मोबाइल फोन देख के मुझे समझ में आ रहा था। पूरी ग्लास टूट गई, पीछे का कवर टूट गया, इतने फोन किए होंगे आप लोगों ने। उसके बाद भी वो आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। विभाग का अध्यक्ष जी, जिनसे मेरा परिचय शबरी बस्ती का है। शबरी बस्ती मतलब जिनको आप साधारण भाषा में स्लम कहते हैं। तो स्लम के बच्चों को शिक्षित करना, वहाँ पे ठंडी उम्र में बच्चों को गर्म कपड़े देना, तो शिक्षा और सेवा दोनों को करने के साथ आप यहाँ पे हैं। एनएसएस की जो यहाँ पे प्रमुख हैं आदरणीय शुक्ला दीदी, आप एनएसएस के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के कई कार्यक्रमों में हम लोग मिले भी हैं। आदरणीय डायरेक्टर साहब, बड़े ही सरल शब्दों में आपने बड़ी अच्छी सी बात कही और सब बड़े, पता नहीं क्यों, बड़े मन से आपको सुन रहे थे। आपका क्या प्रेम है मुझे नहीं पता, मगर बड़े मन से सभी लोग आपको सुन रहे थे। तो मंच पे जितने लोग बैठे हैं, आपकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जिन्होंने एनसीसी पे पीएचडी की है। ऐसे आदरणीय मुकेश जी, बहुत सारे और लोग, अमन अभी बैठे थे, सुमित जी, आप सभी को भी प्रणाम। आप लोग जिस विधा में कार्य करते हैं, मैं बहुत सरल शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो। आपको वही बातें बताई जाए जिनसे थोड़ा बहुत भी अगर हो सके तो आपकी लाइफ में चेंज आए। मैं बिल्कुल भी उस रास्ते पे तो नहीं चलता हूँ कि एक रटी रटाई सी स्पीच आप लोगों के सामने भी डिलीवर कर दूं और वापस चला जाऊं। देखिए, जब हमने अपनी बात प्रारंभ की तो हमने प्रारंभ की भारत माता की जय से। भारत माता की जय कहना आवश्यक क्यों है, कई बार इस पे भी सवाल उठते हैं। भारत माता की जय कहना आवश्यक इसलिए है कि हम सभी भारतीयों को पता होना चाहिए, इस विश्व में सिर्फ हम एक ऐसे नागरिक हैं जो अपने देश को माँ कहते हैं। सिर्फ हम ही एक ऐसे नागरिक हैं पूरे विश्व में जो अपने देश को एक बाउंड्री की सीमाओं में ना बांध के पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। और जब भी हम भारत माता की जय कहते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने कहा, तो आप बहुत सारे सवाल अपने मन में रखिएगा। आप सोचिएगा कि जब आप भारत माता की जय कहते हैं, क्या वो भारत माता की जय कहना सत्य है? जब इस देश में करीब करीब 80 करोड़ लोगों को आज भी भारत सरकार को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो क्या भारत माता की जय कहना सत्य है? क्या हमने देश को अपनी माँ माना है कि बस कह दिया है? अगर माना होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन देना पड़ता। हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जान पाते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये देश मेरी माँ है तो इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारा भाई या बहन है। उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, वो काम है, कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं है। मुझे कभी कभी शर्म आती है जब समाज में लोग ये कहते हैं कि अरे हम सोशल वर्कर्स हैं। हम सोशल वर्कर्स नहीं है। वी आर द वन हु इज फुलफिलिंग अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। हम भूल चुके हैं उसे। हम भूल चुके हैं कि अगर हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जिनके पास अभाव है, जो अभी भी अपना भोजन समय पे नहीं कर पा रहे हैं, जो ठंड में ठिठुर रहे हैं,
उन तक कपड़ा पहुंचे, उन तक भोजन पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप भारत माता की जय कहते हैं तो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है भारत माता की जय आपको प्रत्येक समय पे। अभी जब मैं आया तो मुझे पता लगा कल विश्वविद्यालय की साफ सफाई हुई, और जिन लोगों ने साफ सफाई की उन लोगों को इस बात पे गर्व था कि हमने साफ सफाई की, और ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये देश मेरी माँ है तो ये विश्वविद्यालय हमारा परिवार है, इसकी साफ सफाई करना भी मेरा कर्तव्य है। कुछ अतिरिक्त कार्य नहीं किया हमने। ये भाव मन में रहे जब भी भारत माता की जय कहें। देखिए, आज जिस विषय पे मुझे बात करनी है वो है युवाओं के विषय में। और जितना मैं समझता हूं, युवा को अगर आप पलटें तो हमें दिखता है वायु, और वायु तब तक बड़ा अच्छा लगता है जब तक वो रेगुलेटर की कंट्रोल में, जैसे पंखा रेगुलेटर की कंट्रोल में है, तब तक बड़ा अच्छा लगता है। और रेगुलेटर आज की परिपक्ष में ये जितने लोग गुरु लोग यहाँ बैठे हैं, वो जिनको पता है कि कम गर्मी है तो कितने में चलाना है, ज्यादा गर्मी है तो 4 पे चलाना है, वो चलाने वाले रेगुलेटर मतलब गुरु। और वायु कौन दे रहा है? वो पंखा। वो तब तक बड़ा अच्छा लगता है जब तक वो अनुशासन में है। मगर वही हवा जब अनुशासन के रास्ते को छोड़ देती है तब वो तूफान बनता है, तब वो सुनामी बनती है, तब वो बवंडर लाता है। तो युवा तब तक बहुत अच्छे हैं अपने जीवन में भी जब तक वो अनुशासन के पथ पे चले। अभी आदरणीय भाई साहब ने पूज्य स्वामी जी के विषय में जब बताया तो उन्होंने बताया कि उठो जागो और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। हम सभी लोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़े हैं, मगर उससे बहुत ज्यादा आवश्यक यह है कि लक्ष्य का निर्धारण करना कि लक्ष्य है क्या। उठ गए, जाग गए, चल भी रहे हो, ये भी पता है कि लक्ष्य की तरफ चलना है, मगर लक्ष्य निर्धारित किया है क्या? किस पथ पे आगे बढ़ना है वो निर्धारित कर लिया है क्या? आज युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको पता ही नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है। उठते हैं, जागते हैं, चल भी रहे हैं, मगर जाना कहाँ है वो नहीं पता, जीवन में करना क्या है वो नहीं पता। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। जब मैं 16.5 या 17 साल का था तब मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व कर लिया था। मुझे ये तो बहुत क्लियर पता थी कि अगर मैं सेना में नहीं भी जाता हूं, मेरा सपना भारतीय सेना में जाने का था। और मैं कुछ एकदम आपको सत्य बताता हूं अपने जीवन के विषय में, बिना किसी लाल लपेट के। मेरा सपना सेना में भी जाने का, सिपाही बनने का था। आज ऐसे मंचों पे हम आ जाते हैं, बाकी चीजें करते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, मगर मेरा सपना सिपाही बनने का था कि मैं सेना में जाके एक साधारण सिपाही बन सकूं। मेरी 8वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई। उसके बाद 9वीं में आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्कूल में मैं चला गया था। जब मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ रहा था तो 5वीं तक केंद्रीय विद्यालय में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है, प्रमोट होते रहता है। नंबर कम भी आए तो प्रमोट करते हैं। 6th में पहली बार फेल होने की संभावना आती है। 6th से मैंने खेलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अब जब ऐसे लोग बताते हैं कि यूपी टॉप किया है, चांसलर गोल्ड मेडल मिला है, तो लगता है बहुत ही पढ़ाकू होंगे, बहुत मेधा की होगी। तो ये बताना बड़ा आवश्यक है कि वैसा कुछ था नहीं। मैं भरम में बाकी लोग भी बहुत ज्यादा ना रहे। तो 6ठी में जब मैं आया तब मेरी ये कोशिश थी कि मैं किस तरीके से पास हो जाऊं। मेरा टारगेट सिर्फ सिंपल सा था, 10वीं पास, 12वीं पास, सारने में जाना है, जवान बनना है, 1600 मीटर की दौड़ करनी है, जवान बनना है। उसकी तैयारी में मैं बस लगा रहता था। 6th, 7th, 8th किसी भी तरीके से मैं करने लगा। 8th में जाके एक गेम होता है ताइक्वांडो, अगर आप लोगों को पता हो तो। हमारे स्कूल में उसका सिलेक्शन था, मैं उसके लिए गया। एक जीवन की छोटी सी स्टोरी भी उसमें आपको मैं बताऊंगा। और मेरा जो वजन था वो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि मैं बता सकूं कि मेरी वेट कैटेगरी क्या थी। मान लीजिए कि अगर ये दीदी हो तो दीदी का भी आधा मैं रहूंगा, तो दीदी का आधा मैं था। और स्कूल में हमारे सिलेक्शन थे, मेरे स्कूल में सिलेक्शन हो गया, मेरी वेट कैटेगरी का कोई नहीं था, मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट गए, डिस्ट्रिक्ट में भी मेरी वेट कैटेगरी का कोई नहीं, मेरा सिलेक्शन भाई साहब वहां से भी हो गया। और एक छात्र को बड़ा आनंद आता है जब आप खेलो ना, सबसे पहले आपको केवीएस का एक ट्रैक सूट मिल रहा है, केवीएस लिखा है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट खेलने लगो तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, बैरागढ़ लिखा है। मैं भोपाल के पास एक जगह थी बैरागढ़, वहां से हम लोग, मेरी पढ़ाई उस समय हो रही थी। फिर मैं स्टेट आ गया तो भोपाल लिख के आ गया, पीछे पूरा है ना मध्य प्रदेश भोपाल, वो लिख के आ गया, और खुशी। और यहाँ तक मैंने कोई भी गेम नहीं खेला, वेट कैटेगरी की वजह से बस मैं प्रमोट होकर पहुंचता जा रहा हूँ। एक गेम नहीं खेला है, सरकारी पैसा आराम से खा रहा था, वहां पे घूमता था दिन भर। ठीक है, ये बताना बड़ा आवश्यक है। लोगों को लगता है इतनी सारी अचीवमेंट की है, क्या क्या किया है, तो बहुत सरलता से जीवन में भी चीजें होती हैं। मैं गया, जब पहली बार स्टेट्स हमारा हुआ तो मेरे साथ जो बच्चा खेलने आया वो नेशनल का लास्ट ईयर का चैंपियन था। पहला मैच मेरा हुआ। जैसे ही मैच प्रारंभ हुआ, उसने शुरुआत के 5-7 सेकंड में मुझे लगता है कि सेकंड के हिसाब से पर सेकंड 2 लात मारी होगी, इतनी स्पीड से मार रहा था। तो जैसे ही मैच शुरू, उसने धड़ 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 चालू किया। अब पहले 10 सेकंड तक तो मुझे था कि मुझे डिफेंस करना है उसे, नेशनल चैंपियन था, मगर इतनी बुरी तरीके से मार रहा था वो मुझे
कि 10 सेकंड के बाद मेरा यह था कि नहीं अब डिफेंस भी नहीं करना है, अब सिर्फ चुपचाप सरेंडर की मुद्रा में उससे मार खानी है। तो मैं मार खा रहा था। फर्स्ट राउंड पूरा बहुत बुरी तरीके से मार खाया। सेकंड राउंड फिर से खड़ा हुआ। अब मन में ये भी था थोड़ा मलाल कि भाई महीने भर इनका सरकारी दाना खाया है, कम से कम जितनी पड़ रही है वो खाए, तो इतना पिटे थे। फर्स्ट राउंड पिटा, दूसरे राउंड में दोबारा से खड़ा हुआ, वापस शुरू हुआ। सेकंड राउंड तक मैं पूरा एकदम क्लियर हूँ कि अब सिर्फ मार खाना है, कुछ नहीं करना है। मेरे को क्लियर था कि मैं मार नहीं पाऊंगा। एक दो मौके बीच में आ रहे थे कि अब मेरा मन हो रहा था कि अब एक किक मारूंगा, जब तक उठाता तब तक वो दो और में आ देता था मेरे को, फिर शांत एकदम तुरंत। सेकंड राउंड के बाद मेरे कोच ने पानी वानी पिलाते हैं, उसी समय ग्लूकोज पिलाए थे, पानी पिलाए थे। कहा दुर्गेश देखो बहुत बेइज्जती हो गई, स्कूल की भी बेइज्जती हो रही है, धीरे से गिव अप कर दो, वापसी आ जाओ। मैंने कहा सर बहुत खाया यहाँ का, एक राउंड और। तो थर्ड राउंड में मैं फिर आया, फिर से बहुत पिटा। मेरे पूरा बॉडी लिटरली शिविर कर रहा था और ऐसा था कि अब बेहोश होंगे तभी गिव अप वाला मामला है, नहीं तो फिर तो पिटेंगे जब तक है। क्योंकि 2-3 ट्रैक सूट मिले थे, एक साधारण सैनिक के बच्चे को अक्सर वो जूता मिला है रिबॉक का, वो कैसे मान जाए। तो पिट रहा था मैं लास्ट तक। लास्ट मुझे लगता है 40-45 सेकंड बचे होंगे। अच्छा, जब बाद में शूटिंग्स में और बाकी गेमों में मैं खेला, तब एक स्पोर्ट्समैन को आप में से भी जो होगा उसको जब ये बात क्लियर हो जाती है ना कि आप गेम जीत गए हो, तो आप प्रतिद्वंदी को नीचे गिराने के लिए नहीं खेलते हो। आपको पता है आप जीत गए हो, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो कि ठीक है। दो जो फाइनल राउंड 40-45 सेकंड मुझे लगता है मुश्किल से बचे होंगे। मैं एकदम रिंग के कॉर्नर पे, उस लड़के ने मुझे किक मारी, कॉर्नर्स पे नहीं मार सकते, उसने मुझे वहां किक मारी। रेफरी जब तक हाथ उठाता तब तक उसने फिर से मेरे चेस्ट पे किक मार दी और मैं एकदम रिंग के बाहर जाने के बाद वो लड़का घूमा और घूम के मेरे मुंह पे किक मारी, राउंड किक मारी घूम के, और मैं एकदम मुंह के बल बाहर। बैक टू बैक उस लड़के ने 3 फाउल किए, उस लड़के को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और बिना एक भी मैच खेले, कायदे से, बिना एक भी किक मारे, उस मैच में मेरे को मेडल मिल गया। बताइए, ये ताली बजाने वाली बात तो नहीं थी, मगर खैर, इससे मेरे को लाइफ के 2 लेसन समझ में आए उस उम्र में। पहला कि आपके जीवन की परिस्थिति आपको कितने भी लात मारे, अगर हम जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें, आपकी जीवन की परिस्थिति आपको कितने भी लात मारे, कितने भी चैलेंजेस हो। चैलेंजेस कैसे, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लैंग्वेज का बैरियर है, लोग मेरे रंग पे कमेंट करते हैं, लोग इस बात पे कमेंट करते हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूं। कितनी भी लाते मारे परिस्थिति आपको, आप जब तक रिंग में हो, आपको खड़े रहना है, डटे रहना है। आप नहीं मार पा रहे हो, नहीं लड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, खड़े तो रहना ही रहना है। आप विश्वास करिए, आप जिसको भी मानते हैं, वो ऊपर वाला अंतिम समय पे आपकी मदद जरूर करेगा, पक्का करेगा। मगर अगर तब तक, जब तक आप अंतिम समय तक खड़े हैं। दूसरी बात मुझे समझ में आई कि जब आपको ये लगे कि सारी चीजें मेरे लिए फेवरेबल है, आप बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, आपके पिताजी खुद प्रोफेसर हैं, आप ऐसी स्थिति में हो कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, पैसा बहुत है, सारी चीजें, वैसी स्थिति में कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि मेरे लिए ये तो एक चुटकी की बात है, जैसा वो लड़का आ गया। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में आपको जीता जिताया मैच भी हार जाते हैं। ये 2 बातें उस खेल से मुझे समझ में आई। पहला कि अपने जीवन में हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, जीवन में हम कितने भी सक्षम हो, कितने भी अच्छे हो, विनम्र रहना है। उसके बाद से मैं भी खेला, मुझे, हम लोग जब भी गेम करते थे, अगर मुझे पता भी होता था, मैं इंटरनेशनल्स खेला, मगर हमारा सिस्टम ऐसा होता है कि खेलने के बाद फिर से आप दोबारा खेलोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट के बच्चे के साथ खेलना पड़ेगा, स्कूल के बच्चे के साथ खेलना पड़ेगा। मैं उतनी हम्बली उसके साथ बिहेव करता था जैसे आज भी वो मेरा कॉम्पिटिटर हो। तो अपने जीवन में वो चीज हमेशा रखनी कि वो हम्बलनेस रहे, और दूसरा, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको खड़े रहना है, आपको डटे रहना है। खैर, इस खेल के बाद आगे बढ़े हम। मेरे पिताजी सेना में थे, उनकी पोस्टिंग लद्दाख के पास आ गई, सिग्नल रेजिमेंट्स में थे। तो हम लोग को, मतलब पीस कहा जाता है, वो पीस छोड़ के अब फील्ड में वो चले गए, तो हम लोग को वापस आना पड़ा गोरखपुर, और मैं आ गया महाराज जी के स्कूल में। आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा, कई लोग कई बार महाराज जी को ना विभिन्न चीजों में क्रिटिसाइज भी करते हैं। महाराज जी मतलब आज के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एनसीसी में अपने जीवन में जो भी कुछ किया, मूल वही था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला, मूल वही था। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अनुमान लगा सके कि ऐसा कोई स्कूल जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिला सके, ऐसा कोई स्कूल जो आपको एनसीसी में भी सबसे आगे तक पहुंचा सके, एकेडमिक्स में अच्छा, उसकी फीस कितनी होनी चाहिए? कोई भी एक व्यक्ति अगर आइडिया लगाए, कितनी?
तो मैं 16 रुपए की फीस देके पढ़ता था। और गोरखपुर के अधिकांश युवा, ये भैया प्लीज बैठे, इस भेद को छोड़ के कि वो किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, सब उस विद्यालय में जाते हैं, अलग अलग बैचेस बनते हैं और वहां जाके वो लोग पढ़ते हैं। सारी सुविधाएं 16 रुपए। आप एनसीसी करिए, आप स्काउट करिए, आप बाकी चीजें करिए, मैं बताऊंगा आपको, बड़ा आश्चर्य होगा कि मुझ पे लाखों रुपए खर्च हुए वैसे इंस्टीट्यूशन से जिसका खर्चा 16 रुपए। तो अगर आपके अंदर दक्षता है तो आप जीवन में भी उस स्तर पे आगे बढ़ेंगे। एक और बस जीवन का छोटा सा आपको उदाहरण बता के मैं अपनी आगे की बात पे आऊंगा। तो जब मैं 9th पे आया फिर भी मेरी कहानी वैसे ही चल रही थी कि कैसे करके पास होते हैं। भाई साहब, हाई स्कूल पास करना ही इकलौता टारगेट था। मुझे लग रहा होगा कि बीसी साहब को लग रहा होगा कि अरे यार इसको ये बताना था, चाहिए था कि एकेडमिक्स में और क्या क्या किया। मैं अपनी पोल खोल रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि जीवन में जब आप इधर आ जाए तो सक्सेस स्टोरी बताने की आवश्यकता होती नहीं है। मुझे लगता है कि स्टोरी ऑफ फेलियर बहुत जरूरी है कि अगले व्यक्ति के मन में ये भाव आए कि अगर ये यहाँ तक पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता हूँ। तो अगर हम वो डिलीवर कर पाए तो शायद चेंज आए। मैं अपने बारे में 4 अच्छी बातें बता दूं तो उससे मुझे नहीं लगता है कि आपके जीवन में कोई भी चेंज आने वाला है। 9th में मैंने फिर से वही कोशिश की कि अब 9th कैसे पास होंगे। अब तो और दिक्कत हो गई थी क्योंकि सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, महाराज जी का स्कूल, यूपी बोर्ड, तो बोर्ड भी बदल गया, लैंग्वेज बदल गई, मेरे लिए और मुश्किल। तो मैंने 9th में सबसे पहले एनसीसी ली, जूनियर विंग से। तो जेडी से मैंने एनसीसी की और जेडी से मैंने कोशिश किया कि मैं आरडी जा सकूं। एक कैंप होता है रिपब्लिक डे कैंप, उसके लिए मैंने पहली बार प्रयास किया क्योंकि मैं सारे विकल्प खोज रहा था, ऐसा क्या मिले कि मेरे को कम पढ़ना पड़े। और जब आप बहुत सारी इन सब चीजों में एक्टिव होते हो, आप लोगों को पता होगा, प्रोफेसर साहब लोगों को भी जितने हैं उनको पता होगा, जब आप बाकी चीजों में थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं तो थोड़ी बहुत मदद तो आप लोग भी छात्र की कर ही देते होंगे कि चलो इंटरनल्स छूट गए, नेशनल खेल रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है, कोई बात नहीं, इंटरव्यू वाइवा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पता नहीं यहाँ होता है नहीं वहां हो जाता था। तो इंटरनल्स में थोड़ी बहुत हमें मदद मिल जाती थी। तो इस वजह से मैंने 9th में वापस कोशिश की कि मैं आरडी जाऊं। मेरे जीवन का जो वाकया आगे चल के मुझको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूँ। 9th में एक पीआई स्टाफ ने, एक आर्मी के जवान ने मुझे ये कह के वहां से भगा दिया कि तुम नाटे हो। जब मैं सिलेक्शन देने के लिए जा रहा था तो मुझे ये कह के भगा दिया कि तुम नाटे हो। मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि यार इस चीज पे तो मेरा कोई बस नहीं है। मेरी ड्रिल अच्छी है, आरडी के लिए जो मेन चीज चाहिए वो ड्रिल चाहिए, वो अच्छी है, मेरी राइफल शूटिंग ठीक है, मैं अच्छा खेल ले रहा हूँ। उसके बाद भी मेरी हाइट की वजह से मुझे क्यों भगा दिया और सबके सामने ये बोल के क्यों भगा दिया कि मैं नाटा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा उस समय, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था। खैर, मैं किसी भी तरीके से अपना हाई स्कूल निकाला, मैं खेलने लगा था उस बीच में। राइफल शूटिंग्स मैंने स्टार्ट कर दी थी। आर्मी विंग में कैंप होता है, थल सैनिक कैंप, टीएससी, उसके लिए मैं गया, नेशनल्स चला गया। जीवी मौलांकन के थ्रू मेरे को खेलने का मौका मिला, आगे बढ़ा। ये बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, इसलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। मेरे माता पिता को ऐसा लग रहा था इस पूरे खेल के प्रोसेस के बीच में कि उनका बच्चा बहुत मेरिटोरियस है, क्योंकि मेरे परसेंटेज ठीक ठाक आ रहे थे स्कूल में। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं अपने खेल करता था और आने के बाद अपनी इतनी कोशिश होती थी कि मैं शर्मिंदा ना हो। कई बार आपका जो सिलेबस होता है ना, वो समाज में आपको कई बार शर्मिंदा भी कर देता है। आप पढ़े हो, आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो आप शर्मिंदा होते हो। कम पता हो ना, वो ठीक है, मगर आप शर्मिंदा ना हो, इतना तो मैं हमेशा पढ़ता था कि मेरी बेइज्जती ना हो कि आता ही नहीं है कुछ, स्पोर्ट्स में ना खाली खेल रहा है। तो मैं कोशिश करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहता था। तो मेरे पिताजी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा तुम्हारा अच्छा है, सब कुछ परसेंटेज भी अच्छा है, तुम लखनऊ आ जाओ बीटेक करने के लिए। उनको पता नहीं था बच्चा हाई स्कूल इंटर किस तरीके से कर आके निकला है, वो जवान बनना चाह रहा था। मगर तो पिताजी ने कहा कि बीटेक करने के लिए यहाँ आओ। एक छोटा सा वाक्य और बताता हूँ, मेरे जीवन में ये जो जवान बनने से अधिकारी बनने का सफर कैसे शुरू हुआ था। मैं 11 एसएसबी बोर्ड के थ्रू रिकमेंड भी हूँ इंडियन आर्मी के लिए, जो अधिकारी बनने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें। तो जब मैं जवान बनने के इस प्रोसेस में था, उसी बीच में जो आरडी कैंप का जो प्रोसेस होता है पूरा, मैं यहाँ पे आ गया बीटेक के लिए। उसी बीच में मैंने फिर से एनसीसी ज्वाइन की। 5 यूपीए स्क्वाड्रन यही लखनऊ में है, वहां से। और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन बड़ी सरलता से हो गया। मेरे को बेस्ट कैडेट के लिए सबसे पहले ही नॉमिनेट कर दिया गया था, और वाईपी के लिए पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत ठीक था। जो बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक होता है उसी को ये दोनों मौके दिए जाते हैं। कोई एनसीसी का है यहाँ पे? नहीं है, आप हैं भाई साहब तो हैं। तो मेरे को इन दोनों चीजों के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था, तो मैं बड़ी सरलता के साथ दिल्ली तक पहुंच गया। जब मैं दिल्ली गया तब मेरी मुलाकात हुई अर्जन सिंह जी से। क्या आप में से कोई जानता है अर्जन सिंह जी को? भाई साहब को और मैम को छोड़ के कोई युवा जानता है अर्जन सिंह जी को? ठीक है,
5 स्टार ऑफिसर कौन होते हैं, ये कोई जानता है? तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अभी ये जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जेनजी जिनको हम कहते हैं, उनसे आप अभी के कोई स्टार यहाँ के पूछ लीजिए, आप दूसरे देश की पूछ लीजिए, उनको पता होंगे। कोरिया में कौन नाच रहा है वो पता होगा, मगर ये नहीं पता है कि 5 स्टार ऑफिसर क्या होते हैं। शैम मानिक शाह को कोई जानता है? मानिक शाह मूवी आई थी, तो मूवी आई थी इसलिए आप लोग जान रहे हैं। तो शैम मानिक शाह, केएमसी करियप्पा और अर्जन सिंह जी, ये तीन ही ऐसे ऑफिसर हैं जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, 5 स्टार ऑफिसर्स बने थे। भारत के इतिहास में ऐसे सिर्फ 3 अधिकारी हैं। कम से कम हमें कोशिश करके ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मेरी मुलाकात आरडी के समय पे अर्जन सिंह जी से हुई। मैं अपने जीवन का आपको चेंज बताता हूँ, बदलाव कैसे हुआ। मैं जब उनसे मिला, वो एक गोल्डन स्टिक के साथ रहते थे, और एयर विंग के लिए जो बच्चा एयर विंग से एनसीसी कर रहा हो, जो एयरफोर्स या बाकी रस्तों में जाता है, उनके लिए एक तरीके से हम कहते हो भगवान है 5 स्टार ऑफिसर, क्योंकि उनसे ऊपर वो किसी को नहीं देखता है। उनके स्टोरीज आप पढ़े, उनका आप नाम रट रहे हो। जैसे मैं कल तक अगर मान लीजिए किसी का नाम रट रहा हूँ, मुझे कल को उसके साथ चाय पीने का मौका मिल जाए, तो बहुत एक ऐसा होता है कि सपना साकार हो गया। मैं उनसे मिला, मेरी उनसे बात हो रही थी, और एकदम बच्चा ही था मैं उस समय, कम उम्र थी। तो मैंने उनसे बताया कि सर मैं तो ऐसे नकल वकल करके आगे बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे। तो वो खूब ठहाका लगा के हंसने लगे, कह रहे बडी आई एम डूइंग द सेम थिंग। वो भी हंसने लगे उसी तरीके से। मतलब उन्होंने कहा कि ये काम तो मैंने भी किया है। और मुझे लगा कि यार ये काम अगर इन्होंने किया है और ये 5 स्टार होटल ऑफिसर बन सकते हैं, तो फिर मैं क्यों ना कोशिश करूं कि मैं भी अधिकारी बन सकता हूँ। फिर मैंने उनको अपने जीवन के और 2-3 कांड बताए कि सर मैं क्लासेस बंक करके यहाँ गया था, वो गया था। उन्होंने कहा मैंने ये सेम किया। उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, उन्होंने कहा हम पहली बार डेट भी ऐसे गए थे बंक करने के बाद। मैंने कहा अरे ये सब झे करके अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, जहां तक आ सकते हैं, बिल्कुल इसी जीवन चक्र के साथ, इसी रास्ते के साथ, तो मैं क्यों नहीं सोच सकता हूँ? मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मुझे जवान बनना है, मुझे सिपाही बनना है, बाकी के लोगों से मिला। ये सब एक्सपोजर क्यों जरूरी है? ऐसी जगहों पे आके बैठना भी क्यों जरूरी है? शायद इसीलिए, शायद माता पिता भी इसीलिए कहते हैं कि संगत का बहुत असर पड़ता है। शायद इसीलिए कि आप जैसे लोगों के साथ बैठे हो, आपकी सोचने की स्थिति फिर धीरे धीरे बदलती है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी के जिस कार्यक्रम में था, कुल 22 युवा ऐसे हैं देश भर के जो उनको एडवाइस भी करते हैं, एडवाइजरी मेंबर है। सौभाग्य है कि उनमें से एक मैं भी हूं। मगर उनमें से जो सबसे यंगेस्ट है, उसकी उम्र है 16 साल। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को एडवाइस करने वाला व्यक्ति 16 साल का। गुजरात के एक युवा है, और वो, उनको पूरी गीता कंठस्थ है। उनको उनके बाद उनसे आप कोई भी चीज आध्यात्मिक विषय में पूछिए, उनको सब पता है। एडवाइजरी मेंबर है, ठीक है। तो उम्र के कोई भी मायने कई बार जीवन में नहीं होते हैं। खैर, मैं आता हूं कि जब ये सारी बातें हो रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को आर्मी में ऑफिसर बनना है। आरडी कैंप के दौरान, आरडीसी कैंप के दौरान ही जो मेरा सपना था, जिस चीज जो मैं आपको बताना चाहता था कि मेरी लाइफ में जो मुझे आज भी सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, वो वाकया आज का कर्तव्य पथ, उस समय हम लोग राजपथ कहते थे। तो राजपथ के सिलेक्शन के लिए जब राजपथ का सिलेक्शन जाना था, तो उसमें एक साधारण सा क्राइटेरिया होता है कि आपकी हाइट 170 तो होनी ही चाहिए, नहीं तो आपको अंदर आने का मौका ही नहीं देंगे। 170 होनी चाहिए। अब मुझे था कि मुझे कम से कम सिलेक्शन देना है, मैं क्या करूं? तो मैंने ना 3 सॉक्स पहने थे। आप एनसीसी वगैरह के मोजे थोड़े मोटे होते हैं आर्मी वालों के, तो 3 मोजे पहने थे कि थोड़ी हाइट तो बढ़ेगी मोजों से। उसके बाद मैंने जो डीएमएस शूज पहना था, उसके नीचे मैंने घोड़े की नाल लगवाई थी। तो घोड़े की नाल का 2 लॉजिक होता है, एक तो आवाज अच्छी करती है, जब आप ड्रिल करेंगे तो आवाज अच्छी करेगी। दूसरा, वो भी थोड़ी हाइट बढ़ाती है। मेरी मूर्खता कहिए या जो भी कहिए, उस समय का जोश कहिए, मैं बाथरूम में जाके अपना सर जो है वो दीवार से मार रहा था कि यहाँ से ऐसे कुछ निकल जाएगा, जब वो नापेंगे तो वो भी हाइट बढ़ाएगा। मैंने करीब करीब 20-25 बार अपना सर मारा होगा कि यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टुल्लू सा निकल जाए, ठीक है, थोड़ी हाइट बढ़े। ये सब करने के बाद जुगाड़ में वहां पे पहुंचा, उन लोगों ने मेरी हाइट नापी, मेरी हाइट 171 निकली। उतनी मैं बढ़ा चुका था, मेरी रियल 168 है, इतनी मैंने बढ़ाई। उन लोगों ने मेरे को ले लिया, अंदर आ गया। जब हम लोग सिलेक्शन के लिए आते हैं, भाई साहब उस प्रोसेस में रहे भी हैं तो उनको पता होगा, देश भर के बच्चों को वो लोग क्या कहते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि स्टेट के हिसाब से पार्शलिटी हुई है। मेरा दुर्भाग्य कहिए, मेरे बगल में सिर्फ हरियाणा और महाराष्ट्र के बच्चे 6'4", 6'5", 6'3", तो मैं किसी की छाती तक, किसी के कंधे तक खड़ा तो हो गया। वहां पे ड्रिल करनी थी, ऐसे ऐसे करके सबको देख रहा था। यहाँ पे हम लोग तेज चल का कमांड था, सामने ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे, जनरली उसको लीड वही करते। मुझसे पहले करीब 23 या 24 बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे।
23-24 बच्चों के सिलेक्शन का मतलब है करीब 300-400 बच्चों को रिजेक्ट किया गया होगा, उनमें से वो बच्चे सेलेक्ट हुए थे। हम लोग एक सीधी लाइन से तेज चल का ऑर्डर था, तेज चल किया, प्रॉपर पहला मैंने शूट लिया। मेरा शूट उस समय पे, शूट मतलब जो हम पहला पैर उठाते हैं वो मेरे सर तक जाता था, पूरा ऊपर उठाया, पैर नीचे से उठा के अपने सर तक, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पैर पे मेरी जूते की शोल ऐसे मेरे सामने से उड़ के जा रही थी। और उस समय पे मुझे ये बात पता थी कि दुर्गेश, आपने जो अपने जूते में घोड़े की नाल लगवाई है वो बंचेस ऑफ कील के साथ जुड़ी है, बहुत सारी कीलों के साथ जुड़ी हुई है। वो जैसे ही तुम अपना पैर नीचे मारोगे वो चुभने वाली। एंड बिलीव मी, मेरे दिमाग में, मैं सच बोल रहा हूँ, उस समय सिर्फ एक बात चल रही थी जो 9th में मुझसे किसी ने कही थी कि तुम नाटे हो या तुम्हारी हाइट छोटी है। उसी स्पीड के साथ मैंने वो अपना पैर जमीन पे मारा, चमड़ी, गुर्दा, हड्डी, वहां तक मैं उन कीलों को महसूस कर पा रहा था। क्योंकि मेरे को ऑर्डर नहीं थे रुकने के, तो मुझे आगे भी चलना था। मैंने फिर से अपना पैर वहीं पे मारा। दूसरी बार उस पैर को मारने के बाद मेरे को ऑफिसर ने रोका, उन्होंने देखा उस चीज को। डांबर रोड पे जल्दी खून विजिबल नहीं होता है, बट इतनी फ्लुएंटली वो बह रहा था कि वो खून दिख रहा था वहां पे। उन्होंने रोका मुझे, उन्होंने पूछा कि दुर्गेश आगे करोगे? मैंने कहा यस सर, आगे करूंगा। उन्होंने कहा तुरंत बदल उसे। बहुत ज्यादा दया दृष्टि होती भी नहीं है, सेना में होनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने तुरंत वो जूता निकालना मेरे लिए बड़ा आसान था, उसमें कुछ बचा तो था नहीं, शोल बाहर ही निकली हुई थी। मोजा निकालना मुश्किल था क्योंकि वो अंदर तक, हड्डियों तक कीलें जा चुकी थी। तो उस मोजे को निकालते हुए इतना मांस मैंने अपने हाथ से अपने शरीर का निकाला, बाहर किया, दोबारा से मोजा पहना, शूज पहने, खड़ा हुआ। एंड मेरे पैर लिटरली शिविर कर रहे थे। एक जेडब्ल्यू की बहन थी, उसी का जूता मुझे आ भी पा रहा था, 7 नंबर का, बाकी सब 10-11 वाले लड़के थे वहां पे। तो एक बहन का जूता मांगा था, वो पहना, खड़ा हुआ। मेरे पैर लिटरली शिविर कर रहे थे उस समय पे, और मुझे लग रहा था मैं आगे चल भी पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। बट इस पूरे प्रोसेस के बीच में सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में थी कि मेरी हाइट छोटी है, ऐसा किसी ने मुझे 9th में कहा था, या तुम नाटे हो, ऐसा किसी ने मुझे 9th में कहा था। वापस मैं खड़ा हुआ, तेज चल का कमांड हुआ, फिर से चला, और उसी पैर का जूता दोबारा से तोड़ दिया मैंने। हम लोग, जो लोग एनसीसी के, उनको पता है अगर आप टो अपना आगे करोगे तो जल्दी शोल टूट भी जाती है। तो दोबारा से इसका जूता तोड़ दिया, खड़ा हुआ, वापस ऑफिसर ने रोका, उन्होंने कहा आगे और करेगा? मैंने कहा सर, हमें 2 पोजीशंस वहां पे करनी होती है, सलामी सस्त और बगल सस्त। राइफल के साथ 2 ड्रिल के पार्ट हैं वो करने होते हैं, वो दोनों वहीं पे मैंने किए। जो बच्चे सिलेक्टेड थे उन सारे सिलेक्टेड बच्चों को ऑफिसर ने वापस क्राउड में मिलाया, मुझे अकेला खड़ा किया, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे देश की कंटीजेंट उसके बाद मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की गई। पूरे देश के बच्चे मेरी हाइट के अनुसार सेलेक्ट किए गए। मैक्सिमम बच्चे नॉर्थ ईस्ट के सेलेक्ट हुए। तो जीवन में कई बार जब आपको लोग आपकी आपकी परिस्थितियों पे, आपके रंग पे, आपकी हाइट छोटी है बड़ी, आप अमीर हो गरीब हो, इस पे जज कर रहे हो, तब सिर्फ एक चीज है जो युवाओं के पास होनी ही चाहिए, वो उनका जुनून, उनका जोश। अगर वो उनके अंदर है तो वो किसी भी ऐसी चीज को, जो बेंचमार्क होगी नहीं, 170 के नीचे तो जा ही नहीं सकता है। गए तो, जो कहते थे अरे गांव देहात का बच्चा कैसे चला जाएगा चंद्रयान पे, ये गए तो आपके लखनऊ के। जो लोग ऐसा कहते हो कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है तो नहीं सेना में जा सकता, आज इवन सेना में भी ऐसे लोग हैं जिनकी शरीर नहीं है सही। अगर आपके अंदर वो जोश है तो आप वो चीजें सिद्ध कर सकते हो अपने जीवन में, अगर आप सकारात्मक दिशा में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर मुझे उस समय पे ये होता कि अरे वो कील चुभेगी, दर्द होगा, तो शायद मैं आज तक उस प्राउड को लेके ना चल पाता। वो दर्द तो था उस समय का, 1 महीने 2 महीने रहा होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना, मगर वो प्राउड जीवन भर का है। तो जिस भी रास्ते में आप लोग आज बढ़ोगे अपने जीवन के लिए, अपने सक्सेस के लिए, उसमें कितने भी कष्ट आए, उसको बड़ी बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ लीजिए। आप विश्वास करिए कि आप जिस दिन अपने, जो आपका टारगेट है उसको अचीव करेंगे, तब जो खुशी मिलेगी वो शायद कभी भी नहीं मिल सकती है। और वैसे रश्मि रथी में युवाओं के लिए चीज कही भी गई है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मगर दुर्भाग्य ये है कि हमें 8 बजे तक खाली रजाई दिखती है, उसके बाद मोबाइल दिखता है, उसके बाद ये दिखता है कि कैसे क्लासेस और बंक कर ले। ये जब सारी मैं अपनी स्टोरी ऑफ फेलियर सुना रहा था तो ये सिर्फ इसलिए था कि एक ऐसा लड़का जो एकदम नालायक था, जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से भागता था, जब उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि अच्छा मेरे को चलना है तो इस दिशा में चलना है,
तो मुझे उसके बाद गर्व है कि मैंने डिफेंस स्टडीज में लखनऊ यूनिवर्सिटी और यूपी भी टॉप किया, क्योंकि फिर मैं पढ़ने लगा, नकल छोड़ के फिर अकल के रास्ते पे बढ़े, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी अच्छी दक्षता हासिल की। एक ऐसा लड़का जो बाकी के आयाम सोच रहा था कि और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और दिख सकती हैं जीवन में। मुझे बड़ा सौभाग्य, हम लोग कई बार अपने आप को ही, युवा खासकर अपने आप को ही बांध लेते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, वो खुद बांध लेते हैं कि अरे मैं तो पढ़ने लिखने में अच्छी हूँ, मैं खेल नहीं सकती हूँ। अच्छा, मैं खेलने में अच्छा हूं तो मैं पढ़ाई लिखाई कैसे करूं? मुझे लगता है भगवान ने आपको ये एक जीवन सब कुछ करने के लिए दिया है। और आप खासकर देखिएगा, जो लोग अच्छे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में, आप अपनी यूनिवर्सिटीज के अपने सीनियर प्रोफेसर्स को देखिएगा, जो वैसे लोग होंगे जिनको लोग एडमायर करते हैं, वो कई सारी चीजों में बहुत अच्छे होंगे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छे हों। अभी देखिए भाई साहब ने जब बोला तो इतना अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी थी, लग रहा था आप राष्ट्रपति भवन में, जब दीदी बोल रही थी इनको सुन के इतना अच्छा लग रहा था कि अरे वाह, कहाँ आ गए। तो आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे हो, आप वक्ता अच्छे हो, आप सोशल वर्क इतना अच्छा कर रहे हैं, तो जो लोग अच्छे हैं, आप विश्वास करिए वो हर एक चीज में अच्छे हैं। तो अपने आप को खुद मत बांधिए कि मेरा फील्ड तो सिर्फ ये है कि मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, और आप इन सबको बहुत अच्छे लेके आगे चल सकते हैं। मगर आज की स्थितियों में जो सबसे बड़ा दुश्मन हम सबका है, उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए, मोबाइल फोन से। मुझे लगता है जो जितने भी नशे हैं, अगर उनमें आज सबसे ऊपर रखना हो तो मोबाइल फोन का नशा है। चरस गांजे का भी उपाय मिल सकता है, इसका उपाय नहीं है। नीचे से ऊपर तक सब लगे हुए। और नशे का मुझे ऐसा लगता है कि नशा खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल है, उसको आप सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अगर युवा है तो युवा को अगर किसी चीज का नशा लगा हुआ है, किसी भी चीज का, आप उस नशे को रिप्लेस करिए स्पोर्ट्स के साथ। एक उम्र के बाद आप आते हैं, आप अध्यात्म का नशा करिए। जो भी हमारे पास खाली समय, हम कुछ नहीं करेंगे, चलिए राधा राधा बोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उस चीज का नशा है। जो लोग एकेडमिक्स में, उनको किताबों का नशा हो। मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस घर में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व में डीजीपी रहे महेंद्र लालिका जी, मैं आपको बताऊं कि उनके पास आज तक में जितने भी अधिकांश किताबों का, उनको फर्स्ट एडिशन लेने का नशा है। उनके पास इतनी सारी किताबें दिखेंगी। एक शेक्सपियर की उन्होंने मेरे को किताब दिखाई, जिसकी कीमत आज वो बताते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए है। उस समय पे क्या रही होगी मुझे नहीं पता, मगर फर्स्ट एडिशन की बुक, उनको उस चीज का नशा है। फर्स्ट एडिशन वो हाथ से लिखी हुई उनकी किताब थी, 2.5 करोड़ रुपए आज की उसकी कीमत है। उनको उसका नशा है। दिन भर देखो तो दिन भर पढ़ ही रहे हैं खाली। तो नशा हम सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं। आप पॉजिटिव दिशाओं में अपनी अपनी नशाओं को रिप्लेस करें। कोशिश करें कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे तक ना रह के मुझसे थोड़ा आगे बढ़े। सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा हूं तो मैं की एक जो प्रजाति है उसको सिर्फ काटा ही जाता है। मैं कहती, क्या कहते हैं उसको, मैं बकरी, वो सिर्फ कटने के काम आती है। मैं छोड़ के हम पे आइए, हम सबका उद्धार किस तरीके से हो, हम किस तरीके से बढ़े, हम सब लोग आगे कैसे आ सकते हैं लाइफ में, उस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है। जो एक शब्द आजकल लोग बड़ा इस्तेमाल, जिस विषय में हमें भी आज बात करनी थी, जेनजी, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा, मैं अपने शब्द के लिए क्षमा चाहता हूं, इससे ज्यादा अभागी पीढ़ी शायद कोई नहीं होगी। लोग कहते हैं कि जेनजी को बताने के लिए, कह रहे ये जेनजी है, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, मगर इनसे ज्यादा दुखी एक्चुअली में कोई नहीं है। हम लोग सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली पीढ़ी थे। हमने अपने गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों में अपनी दादी नानी इनको देखा है। हम लोगों ने, ये जो ऊपर जो पीढ़ी बैठी है, इनकी वजह से जेनजी परेशान है। वो बात हम बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक पीढ़ी को ये बात बोली गई कि आपको पैसा कमाना है, ठीक। आज जितने लोगों की यहाँ पे 40, 45, 50 की उम्र होगी, वो अगर याद करे तो उनको सिर्फ ये बात बताएगी, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। उस पैसा कमाने की होड़ में उन्होंने खुद नौकरी की, बीवी ऐसी खोजी जो नौकरी करती है, अपने घर वालों को ये कहा कि देखिए हमें तो पैसा कमाना है, घर वालों को गांव में छोड़ दिया, खुद आ गए शहर में, अकेले रह रहे थे। उस पूरे पैसे के सर्कल में उनका बच्चा कहाँ गया नहीं पता। उनका बच्चा एक्चुअली में मजबूर है, इसलिए वो मोबाइल लेके बैठा हुआ है। जेनजी, उसके पास विकल्प नहीं है, इसलिए वो मोबाइल लेके बैठा है। हमारे पास तो था, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन था? हम तो घर आते थे, तुरंत बाबा पकड़ लेते थे। शाम को हमें पता था कि नानी के साथ बैठना है, रात को सोना भी है तो दादी के पास जाना है, वो एक कहानी सुनाएंगी, कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलेगा। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन? आज तो ऑफिस से मम्मी आने के बाद वो खुद रील चला रही है और बेटे को लेकर, मैं राष्ट्रपति भवन में अभी जब माननीय राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण था उसमें गया हुआ था, मैं देख रहा हूँ राष्ट्रपति भवन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाहर एक बेटी छोटी सी अपनी मम्मी का वीडियो बना रही है रील में।
राष्ट्रपति भवन में, जहां लोगों को एंट्री नहीं थी, वो वहां पे बैठ के उनकी रील बना रही है। वो बच्ची अपना लाइफ कैसे एंजॉय करेगी? उसने तो देखा ही नहीं वो जीवन कैसा है, जो हम लोग देख चुके हैं। हम बोल तो देते अरे ये जेनजी जनरेशन है, मगर उनसे ज्यादा परेशान एक्चुअली में कोई नहीं है। उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। अगर किसी बहन को उसके जीवन में, उसके कॉलेज में क्या परेशानियां हो रही हैं, वो किस दिक्कत में है, वो बताने के लिए आज उसके पास उसकी खुद की माँ तक नहीं है। वो माँ भी मोबाइल में लगी हुई है, दोस्त बहन बाकी तो छोड़ ही दीजिए। उनका दुख समझ पाने की क्षमता अभी शायद हम में नहीं है कि वो किस परिस्थिति में जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम जेनजी के बारे में बात करें तो हम ये कोशिश करें कि पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में भी देख लें कि हम उनको समय कितना दे रहे हैं। खासकर आज के जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को हम कितना समय दे रहे हैं। मोबाइल फोन और बाकी की चीजें हम अपने घरों में बैन करें। उन बच्चों को जो भी आपके घर के हैं उनको अपना पूरा समय दे सकें। कोशिश करें कि जिनके माता पिता वापस आ सकते हैं शहरों में, वो अपने माता पिता को, मतलब बच्चों के बाबा दादी को अपने पास लेके आ सके। उनको पता लगे कि कुटुंब परिवार होता क्या है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी भी जो पद्धतियां अभी भी चल रही है शादी विवाह वाली, आने वाले समय में वो भी समाप्त हो जाएंगी। अब परिवार वाली तो खत्म दिख ही रही है, आने वाले समय में शायद वो भी समाप्त हो जाए। तो वो सारी चीजें आपस में मिले, इसके लिए हम सभी लोग साथ मिलकर आगे बढ़े। युवा जनरेशन जितनी भी यहाँ पे और लोग उपस्थित हैं, उनको बस मैं एक अंतिम बात ये कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मेरे जीवन का जो मुझे सबसे गर्व का क्षण लगता है आज तक का, वो यही है जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़े हो। बाकी के देशों के झंडे थोड़े से नीचे दिखते हैं आपको, भारत का झंडा थोड़ा सा ऊपर दिखता है। सबसे गर्व, सबसे ज्यादा जीवन का गर्व वो दिखता है। आप जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप एकेडमिक्स में कर रहे हैं, आप कोशिश ये करिए कि सिर्फ मुझे नौकरी के लिए पढ़ाई तो नहीं करनी है। मेरी पढ़ाई भी इस दिशा में होनी चाहिए कि अगर मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद अगर मेरे को जिस भी विधा में आप पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद मैं सोसाइटी में क्या चेंज ला सकती हूँ, उस सोसाइटी का चेंज नेशन बिल्डिंग में किस तरीके से काम आ सकता है, राष्ट्र का अभ्युदय किस तरीके से होता है, मैं भारत का नाम किस तरीके से आगे बढ़ा सकूं। अगर आपकी सोच वैसी होगी, तभी शायद आप में से कोई ऐसा व्यक्ति निकल सके जो अपने आप को बड़े गर्व के साथ फिर ये कह सके, अरे मैं तो विराट कोहली वाली श्रेणी का हूँ, या सचिन की श्रेणी का हूँ, या डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की श्रेणी का हूँ। इन सभी को हम याद क्यों रखते हैं? इसीलिए तो क्योंकि उन्होंने भारत का नाम बढ़ाया। तो अपने भी जीवन को हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ा सके कि हम लोग देश का नाम जितना हो सके आगे बढ़ाएं। कोशिश करें कि जब हम लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार शिक्षा निहित हो। जितना मेरे को समय मिला था उतना मैंने बोल लिया। आप सभी ने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बात को हमने स्मरण किया था, उसी बात को याद रखते हुए हम लोग एक बार भारत माता की जय करेंगे। भारत माता की, भारत माता। सर, सारा सार हम लोगों के साथ शेयर किया है। हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ उनसे जरूर सीखा होगा, और ये भी सीखा होगा कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आ रहा हूं क्योंकि मेरे को एक युवा दिवस पे मैं आप सबको, यहाँ बैठे सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोगों ने दुर्गेश त्रिपाठी जी को सुना, जो कि एक यूथ आइकन है हमारे कंट्री के। कितनी सुंदर बातें, और मतलब सब सच थी, उनके जीवन से निकली हुई बातें थी, वो उन्होंने हमें बताई। और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम सबको। मतलब मुझे दुख भी हो रहा है कि यहाँ पे जो यूथ होना चाहिए इस क्लासरूम में, उनको सुनने के लिए वो कम लोग। अगर वो लोग होते तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा सीधी सादी लैंग्वेज में जो उन्होंने बताया है हम लोग को, बहुत कुछ उससे सीखा जा सकता है। और हर स्टेज का एग्जाम्पल उन्होंने अपनी लाइफ से दिया। आज हम उनको देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम उनको, उनका जो यहाँ पे उपस्थित है, उस खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। वो उनकी स्ट्रगल है, वो उनकी स्ट्रगल की वजह से। तो इस दिन मैं उनको भी बधाई देता हूं कि आपने मैं यही कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा पथ पे आप चले, दिखाए हुए पथ पे चले और आज यहाँ पे पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से आप उनको धन्यवाद दीजिए। एक दो लाइन मैं इस पे जरूर बोलूंगा क्योंकि ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि प्रिंसिपल्स टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद फ्रॉम मिलीनियल्स टू जेन जी। हम लोगों ने एग्जाम्पल जेन जी का आपने भी दिया
और देखते भी हैं कि कैसे जेंजी कुछ यहाँ बैठे भी हैं और कैसे इन्वॉल्व है आजकल के लाइफ में, पॉलिटिक्स में। लेकिन आपको स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप उनके पूरा जीवन को स्टडी करें तो आपको उसमें मतलब कर्म योग भी मिलेगा और भक्ति योग भी मिलेगा, दोनों चीजों का मिश्रण है। और बहुत सही कहा था जब हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कि अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, ये उन्होंने कहा था। और इसमें मतलब उन्होंने ये तो कहा ही कि अपना लक्ष्य देखो, ये आप बता चुके हैं, लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, उसमें आप लोग को कोशिश करते रहना है। तो आप कोई भी फील्ड में हो, ये चीज एकदम रामबाण है कि आप अगर अपना लक्ष्य को आप चुन पाते हो, और लक्ष्य को चुनने के लिए उन्होंने कहा एक गुरु की जरूरत होती है। और गुरु कई तरह के होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है और एकेडमिक गुरु भी हो सकता है, जो कि आपके लक्ष्य की तरफ ले जा सकता है। ये आपको चूज करता है, अच्छे गुरु को भी आपको ही चूज करता है। ये भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक तरह से ये भी सौभाग्य होता है कि अगर उनको सच्चा, किसी को भी सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाए। तो अगर गुरु आपको मिलता है, लेकिन उससे आपको सीखना पड़ेगा, वो आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपका लक्ष्य है, आपकी कोशिश होनी चाहिए, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमारे भारत की संस्कृति तो फैलाई, क्योंकि उन्होंने जो उनके गुरु थे परमहंस जी, उनका उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक सेंटर्स बनाए, चाहे वो यूएस में थे चाहे भारत में थे, और उसको फैलाया। उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई, इतनी तक इम्पोर्टेंस बताई कि जो हमारे यहाँ 50% पॉपुलेशन है, वुमेन की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीरज जी ने भी दिए और दुर्गेश जी ने भी दिए, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं सुना के बस अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ इस पे, लेकिन मैं किसी और दिन बोलूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो जब यूएस गए थे तो हमारी भाषा का विश्वविद्यालय है, तो भाषा का महत्व समझा रहा हूं। उन्होंने जो अपनी स्पीच को शुरू की, जो मशहूर हुई, उसमें कहा उन्होंने, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये क्या है? शब्द है और कुछ नहीं। उन शब्द, चाहे वो इंग्लिश था या हिंदी था, वो शब्द एक भाषा है। तो आप लोग भाषा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो इसको जरूर अपने कैरियर से कनेक्ट करिए कि हमें विनम्र रहना है, हमें अच्छी लैंग्वेज को यूज करना है, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पर चले जाएं। तो अगर ये चीज करते हैं तो ये एक इनसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ से सीखने को हमें मिलता है। जहां तक वुमेन रिस्पेक्ट की बात है, तो जब उन्होंने बहुत अच्छे, पहले तो उनको स्पीच देने के लिए कोई टाइम ही नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने किसी एक अमेरिकन प्रोफेसर को पकड़ा और किसी तरह थोड़ा सा बोला। जब थोड़ा सी स्पीच दी तो उनको दोबारा बुलाया गया, और फिर ऐसे करके उन्होंने कई स्पीचेस दी। तो उनकी स्पीच सुन के वहां पे एक वुमन थी, अमेरिकन वुमन, वो बड़ी मतलब उससे प्रभावित हुई और उन्होंने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं शादी इसलिए करना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे होंगे वो भी आपकी तरह ही होंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोले कि मैं तो मतलब साधु हूं, शादी नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे अपना बच्चा मान लीजिए तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उस वुमन ने उनके पैर पकड़ लिए, उन्होंने बोला कि आप जैसा सन मैंने नहीं देखा। तो ये चीज उनमें हर बात में, उनकी हर बात में कोई ना कोई लेसन हम लोग को सीखने को मिलता है। तो जरूर उनकी बुक्स को पढ़िए और सीखिए, और अपने जितना भी कुछ अमल हो सके अपनी लाइफ में वो करिए, और दुर्गेश जी जैसा बनिए। ये मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। लेकिन वो अपने कार्यों के लिए जा चुके हैं।
आज इस मंच पर जो मुख्य वक्ता के तौर पर आदरणीय दुर्गेश त्रिपाठी जी उपस्थित हैं और मुझे अपने ही घर और परिवार के बीच ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि वो हमारे बड़े भाई भी हैं और जिस नाते मुझे इस विश्वविद्यालय में जाना गया, मैं एक युवा संसद में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आयोजित हुई थी, मैं वहां गया था और जिस नाते ही मेरे विश्वविद्यालय ने मुझे भी बहुत प्रेम दिया, आज इस बात का भी उल्लेखन मैं इस मंच से कर रहा हूं कि वहां जो ज्यूरी मेंबर थी, उस ज्यूरी मेंबर में भी आप सदस्य थे। तो आप जैसे विराट व्यक्तित्वों ने मेरा मूल्यांकन किया है, तब मैं वहां तक पहुंचा हूं और आज इस मंच तक बोलने के लायक हूं। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से बिंदुओं को यहाँ पर रखा है, तमाम फेलियर बताए, लेकिन एक और मैं नई बात जोड़ देना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई से काफी दूर होकर भी मेधावी बना, और वो सिर्फ मेधावी नहीं बने, आप सबको जानने की जरूरत है, लखनऊ विश्वविद्यालय की मेधावी छात्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे, मेधावियों के मेधावी रहे। तो उनका हमारे विश्वविद्यालय में आना गौरव की बात है। आज युवा दिवस के अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए, जैसा कि दुर्गेश भैया ने और वीसी सर ने भी रेखांकित किया कि आज ये संख्या और अधिक होनी चाहिए। ये अधिक संख्या की होने की जिम्मेदारी भी हम साथियों पर ही है, क्योंकि हमारे विभाग के शिक्षक तो लगातार निर्देशित करते हैं कि इस कार्यक्रम से जुड़ना है। कोशिश करें कि हम अपने आसपास के जो मित्र हैं उनको विश्वविद्यालयों के ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ें और अपना भी समय निकालकर हम ऐसे कार्यक्रम में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। इतने अच्छे अच्छे व्यक्तियों को सुन लिया है, उसके बाद कुछ भी बोलना सूरज को प्रकाश दिखाने जैसा होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज के युवा दिवस पर हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्वामी जी ने जिस उठो शब्द को लेकर के कहा कि जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, उसी से संबंधित 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात को विराम करना चाहूंगा कि उठो साथियों, हमको तुमको युग के व्यवधान बदलने। एक एक पंक्ति में स्वामी जी के दर्शन का स्रोत है, स्वामी जी के दर्शन का संदेश है कि उठो साथियों, हमको तुमको युग के व्यवधान बदलने हैं, हैवानी चट्टानों पर सोते इंसान बदलने हैं, और बदले हैं पूजा के पाषाण अभी तक, हमको तुमको पूजा के सामान बदलने हैं, हमको तुमको पूजा के सामान बदलने। आज जरूरत है इस युवा दिवस के अवसर पर हमको संकल्प लेने की, जिस बात का मुख्य वक्ता जी रेखांकन कर रहे थे कि पढ़ाई के साथ और हम क्या कर सकते हैं, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे समृद्ध मंच के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ भाषा और शैली के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ और लगातार आगे करता भी रहूंगा। मुझे ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। और एक और छोटी सी बात रह गई, मैं आपको बताऊं, आप सब दुर्गेश भैया के सोशल मीडिया हैंडल से जुड़िए। उन्होंने ऊर्जा महसूस हुई, मजा आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं हमारे मुख्य वक्ता जी को बता देना चाहता हूँ। सर, आपके आने से पहले हमने इस दिवस के आयोजन पर एक क्विज का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग लिया था। हम सभी को सम्मानित नहीं कर सकते हैं, परंतु हमने उनमें से 3 जो टीमें हैं उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के लिए चुना है, जिसमें स्वामी जी के बारे में क्विज के कुछ क्वेश्चंस थे, उनके जीवन के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लिया और अब ये हम गर्व महसूस कर रहे हैं उनको सम्मानित करते हुए। तो इसी के लिए मैं राशि मैम को इन्वाइट करना चाहूंगा कि वे अनाउंसमेंट करें कि कौन वो बच्चे हैं जिन्होंने इतना उम्दा प्रदर्शन किया है क्विज में और आज उनको यहाँ से सम्मान प्राप्त हो। राशि मैम। Very good afternoon to everyone. This is Rashi Srivastava, and we now arrive at the most exciting moment, that is the competition of the winners of the competition, quiz competition, based on the theme of the teachings of Swami Vivekanand from millennials to Gen Z. The enthusiasm, knowledge, and confidence shown by all the participants truly reflected the spirit of our youth. So a big round of applause to all the participants who took part. There were 18 teams and they all participated in a huge energy, and we have 3 winners over here. So first we have the second runner-up. आप सबके लिए गिफ्ट्स है सर की तरफ से to all the participants. And the second runner-up is team number 9, Vishali Singh, BA Political Science, and Shaheen Sabah of BA Political Science.
I would like to request the dignitaries to please join to give. इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी मुझे लगता है यही होती है और ये लोग हमें ही पकड़ लेते हैं हर बार, ताकि जो झेले मैडम झेलें। तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र सर, सबसे आप पहले आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपने मंच संभाला। और धन्यवाद की कड़ी से पहले मैं 2 चीजें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ कि आज हम लोग बहुत दिनों से बात करते हैं, बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। दुर्गेश जी का और मेरा जो एक साझेदारी है वो मुझे आज पता चली कि दुर्गेश जी ही अकेले नहीं है जिनको ये कहा जाता है कि आप छोटे हैं, हमको रोज कहा जाता है। मैं तो डाइस पे दिखती ही नहीं हूँ, यही इकलौती डाइस है जिसपे मैं दिखती हूँ, बाकी डाइस पे मैं सुनाई पड़ती हूँ, दिखाई नहीं पड़ती हूँ। तो जब मुझे ही कहा जाता है दुर्गेश जी, तो मेरा एक ही जवाब होता है शुरू से लेकर आज तक, जब मुझे पहली बार ये चीज कही गई थी कि आप तो दिखती नहीं है डाइस पे, सिर्फ सुनाई पड़ती हैं, तो मैंने तब भी यही कहा था और मैं आज भी यही कहती हूँ कि ईश्वर ने मुझे छोटा इसीलिए रखा है ताकि मैं सबसे आगे खड़ी हो सकूं, और छोटा इसीलिए रखा है कि मैं किसी से सर झुका के बात ना करूं। जिसको बात करनी है उसे अपनी नजरें भी झुकानी है और सर भी झुकाना है। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं तो ऐसा समझती हूँ। तो मैं यही चीज लेकर चलती हूँ अपने जीवन में। अब आपको यही करना है, अब आपको यही करना है। तो दूसरी बात ये कि दुर्गेश जी ने यहाँ आने का निमंत्रण जो स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी इसलिए हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि लखीमपुर खीरी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आज इन्होंने सिर्फ मेरे लिए डाला है। वो मना कर दिया क्योंकि मैंने आज यहाँ बुलाया था और मुझे बहुत दुख है अपने बच्चों के लिए कि आज वो एक ऐसे व्यक्तित्व को कम सुन पाए जिसे उन्हें जरूर सुनना चाहिए था। क्या कह रहे हैं? हाँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये तो इनका बहुत पहले का वो है। और मैं धन्यवाद की इस कड़ी में सबसे पहला धन्यवाद अपने वीसी सर का करूंगी क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने उन्हें ये प्रोग्राम बताया था और उन्होंने सहर्ष ये बात कही कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जरूर कराइए, क्योंकि युवाओं से ही हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रूबरू होते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो क्या करें और क्या ना करें। उनके मार्गदर्शन में आप जितनी चीजें कर सकती हैं उसे करिए। तो उसके लिए मैं वीसी सर की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को 2 दिन में, जैसे ही मैं उनके पास लेकर के गई थी, उन्होंने तुरंत उसे साइन किया, अप्रूव किया और बोला आप कराइए, बिना सोचे समझे कराइए। बच्चे कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बच्चे कम आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं वो तो सुन सकेंगे, वो किसी को जाके बता सकेंगे कि आज इस प्रोग्राम से वो क्या सीखे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस प्रोग्राम को करिए। तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। रजिस्ट्रार सर की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने भी तुरंत इस चीज को अप्रूव किया कि इस प्रोग्राम को करिए, जैसे भी आप कर पाइए। इसी कड़ी में मैं डायरेक्टर सर की बहुत आभारी हूँ क्योंकि डायरेक्टर सर हमारे हमेशा काम करते हैं। वो ये कहते हैं हमको केवल बता दिया करो। वो एज ए डायरेक्टर ये नहीं कहते तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रही हो, वो ये कहते हैं हमको बता दिया करो, हमें कहाँ रहना है। तो इतनी सरलता उनसे सीखनी चाहिए हम सबको कि वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमको केवल बता दिया करो। और सबसे बड़ी बात ये कि आज सर नीचे खुद कहने गए थे बच्चों से कि यहाँ क्यों बैठे हो, प्रोग्राम में ऊपर आओ। तो ये उनका बड़प्पन है कि वो इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं कि प्रोग्राम हो तो अच्छे से हो जाए। इसी कड़ी में मैं नलिनी मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि नलिनी मैम ने जैसे ही सुना सबसे पहले बोला कि नहीं एनएसएस को तो ये प्रोग्राम वैसे भी कराना था, तो हम मिलके कराएंगे, कोलैबोरेशन में कराएंगे। थैंक यू नलिनी मैम कि आप कोलैबोरेशन में यहाँ आपने इस कार्यक्रम को कराया। इस कड़ी में जो अगला नाम है वो ऐसा नाम है जिनको मैं बड़े प्रेम से, मेरे मित्र हैं, और उनका जो नाम है वो कौन सा है सर बताइए? मैंने आपका क्या नाम रखा है? डोरेमोन। सर का नाम डोरेमोन क्यों रखा है वो बताती हूँ, आप उनके साइज पे मत जाइएगा, इसलिए नहीं रखा है। इसलिए रखा है कि डोरेमोन के पास एक जेब है, जब वो हाथ ऐसे डालता है तो वो पता नहीं क्या क्या निकाल के दे देता है। जब आप कुछ कहेंगे कि ये सामान नहीं है तो वो ऐसे कहता है अच्छा चलो रुको मैं अपनी जेब में से देता हूँ। तो उस जेब में से हमें, मतलब मुझे तो हमेशा ही मिल जाती है चीजें जब मैं उनको एंड टाइम पे 12th आवर पे 13th आवर पे बताती हूँ कि सर गेस्ट आ गए, मेरे पास आज गमले नहीं है, हाँ रुको ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो क्वालिटी है वो नीरज सर के पास ही है। ये तारण हार है एक्चुअली बहुत लोगों के यहाँ पर।
तो बहुत बहुत आभार सर आपका। इस कड़ी में अगला नाम मैं राजकुमार सर का लूंगी, क्योंकि राजकुमार सर की एक बहुत अच्छी खासियत है, कार्यक्रम कोई भी हो वो विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उसको मानते हैं, सच में मानते हैं, और वो कहते हैं कि ये विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है। तो मुझे आप स्पेशली कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वालिटी सर मैंने आपसे सीखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि कार्यक्रम है तो विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है। पूर्ण आज उन्होंने वो आज नहीं वो कल से सहयोग में है, परसों से जिस दिन हमने वो एप्लीकेशन लिखी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कड़ी में शुभम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, फोटो जो आई है वो यही बनवा के लाए हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कहीं मिल नहीं रही थी तो मैंने इनको कार्य सौंपा, कल वो गए बनवा के लाकर हमें दे गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं ये मेरे पास रहेगी, मेरी है, मैंने उनको बता दिया था वो मेरी है, मेरे पास रहेगी, किसी को नहीं देंगे। शुभम नहीं, शुभम छोड़ देगा, मैं बोलूंगी तो छोड़ देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका, और यहाँ बैठे हुए सभी जो टीचर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा उन्होंने मेरी बात सुनी कि आना कंपलसरी है और वो आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जाड़े में सब लोग आए हुए हैं, धन्यवाद। की इस कड़ी में जो अब मैं नाम लेने जा रही हूँ मेरे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स का है, डॉक्टर इफ्फत, धीरेन्द्र सर, शिवांशी मैम और राशि मैम। 2 दिन के भीतर ये जितना ऑर्गेनाइज हुआ है इन्हीं का किया हुआ है। नहीं मानवीय सर को छोड़ा नहीं है, भूले नहीं है, सब हमें पीछे से चिल्ला रहे मानवीय सर छूट गए। मानवीय सर छूटे नहीं, मानवीय सर छूट ही नहीं सकते, हम बाय 1 गेट 1 फ्री हैं अपने डिपार्टमेंट में, है ना सर। मानवीय सर ने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए 2-3, वो ये थे कि सुबह से मैं उनके पीछे पड़ी हूँ कि सर ये काम नहीं हुआ है, और उनका एक ही जवाब आता है, मैम हो जाएगा, 10 ही मिनट तो लगेंगे, सब हो जाएगा, आप आइए, मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ, काम हो रहा है, काम हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो भी फैकल्टीज बैठी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना टाइम निकाल के आए, और जो बच्चे हैं वो अपना टाइम निकाल के आए। अंकित भैया मैं आपको भूली नहीं हूँ, आपने पूरा कवर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा कवर करते हैं, तो आप चूंकि रहते हैं इसलिए हम बहुत फ्री रहते हैं कि हमें फोटो भी मिल जाएगी, हमें किसी भी कार्यक्रम की सारी झलकियां मिल जाएंगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अंत में अगर मैं धन्यवाद करूं, अंत तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट धन्यवाद है सुमित भैया का जो सुबह से भाग रहे हैं, और हमारे जो कार्यालय के लोग हैं जिनको मैंने शायद संडे को फोन करके 2-4 चीजें बताई थी कि ये चीजें हमारे पास नहीं है, और उन्होंने कहा मैम आपको मंडे को 10 बजे मिल जाएगा, और 10:01 पे वो चीजें हमें मिल गई। तो कार्यालय में जो भी हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में लोग हैं और वीसी ऑफिस में लोग हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता नहीं है कि कोई छूटा है, और अगर फिर भी कोई छूटा है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ कि अगर मैं उनका नाम नहीं ले पाई हूँ। एक भाई साहब है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने आते ही कहा कि मैम मैं ये कार्यक्रम में, हरिओम जी, उन्होंने आते ही कहा कि मैम मैं कार्यक्रम में चल रहा हूँ, मैं कार्यक्रम सुन करके ही आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टीचर्स में मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं बहुत माफी चाहती हूँ, कई लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ द टीचर्स मैंने बोला है, इसीलिए संपूर्ण विश्वविद्यालय के टीचर्स के लिए बोला है। तो मैं बहुत माफी से आपसे कह रही हूँ कि आपका बहुत बहुत स्वागत भी और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने पूरा समय। हाँ देखिए बस वही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा महसूस हुआ आज अटेंड करके इस पूरे प्रोग्राम को कि ऐसा प्रोग्राम नहीं था जो आपके लिए फलदायक ना हो। तो मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना है इसको ऑर्गेनाइज करने वाले सभी लोगों का और आपका कि आप रहे, और इस आशा के साथ मैं अपने धन्यवाद ज्ञापन को बंद करूंगी कि आप सब वो सीख जरूर लेकर के जाएंगे जो सीख आपको दुर्गेश जी ने यहाँ से दी। और अपनी कमियां बताना, एक बड़े मंच से बताना, बहुत बहुत ज्यादा वीरता का कार्य है। वीर तो वो है ही क्योंकि वो इतने सारे पुरस्कार लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन वो इतने वीर हैं ये मैं भी आज ही जान पाई हूँ
कि वो अपनी कमियां इतने बड़े मंच से भी बता सकते हैं। तो आज मैंने आपसे ये चीज सीखी। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर ममता शुक्ला, विभागाध्यक्ष जैव प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु डॉक्टर राजकुमार सिंह, डॉक्टर पूनम चौधरी, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, डॉक्टर इफ़त अजीम, इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, इंजीनियर शिवांशी त्रिपाठी एवं इंजीनियर राशि श्रीवास्तव, डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र, डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह का विशेष आभार व्यक्त किया गया।